آپ کا میزبان شوکت مغل، وائس آف پاکستان اردو کے ساتھ آج میں ڈوک کلا خان میں موجود ہوں، اور جس ٹاپک پہ بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ آگے آنے والے الیکشن، وہ بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں چودھری ارسلان صاحب، بڑے متحرک ورکر پی ٹی آئی کے یوسف بھائی سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرے میرے پاس ساتھ جو ہے شمیم عباس صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی وائی او پنجاب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سوال میرا، شمیم عباس صاحب، آپ کی گورنمنٹ تقریباً 2 منتھ کے قریب ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ کی گورنمنٹ جیسے برسر اقتدار آئی، اس عواموں میں جیسے انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، غریب دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے، پس گیا ہے، کیا سر آپ کی گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اس کی بنیاد پر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، یہ 2 مہینے کی گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، 3.5 سال جناب جس گورنمنٹ میں جناب جس گورنمنٹ کا حصہ رہے، وہاں 3.5 سال میں مہنگائی کا کیا عالم تھا، اور وہ خزانے میں جو کچھ بچا کھچا ہوا تھا اسی پہ ہم نے گزارا کرنا تھا۔ آئی ایم ایف سے آپ جناب والا قرضہ جو ہے وہ آپ نے قرضہ لیا، اس کے بعد اس کی اقساط رہتی تھی۔ آج ملکی حالات جو ہے وہ اس طرف چلے گئے کہ آپ نے ایجیٹیشن شروع کی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ حکومت کرنے کے خواہاں ہیں۔ شمیم عباس صاحب، آپ کی گورنمنٹ لانگ مارچ کر رہی تھی، سندھ سے، کراچی سے، مہنگائی 22 ارب روپے عمران خان خزانے میں چھوڑ کر گیا، آج وہاں پہ 11 ارب روپے باقی وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جو 11 ارب روپے کہاں گئے ہیں؟ میری گزارش آپ جب تک سنیں گے نہیں پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بیچ میں انٹرپٹ۔ شمیم عباس صاحب، میں انٹرپٹ کرتا ہوں نا کہ گھی کا پیکٹ اس ٹائم 600 روپے تک جا پہنچا ہے سر۔ عمران خان 300 روپے کا تھا، آپ کے دور میں بھی یہی قیمتیں تھیں سر، 300 روپے پہ چھوڑ کے گیا ہے عمران خان۔ شمیم عباس صاحب کیا کرتے ہیں سر؟ یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ 300 روپے کا پیکٹ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے، یہ سریحاً غلط ہے۔ اور آپ جوڈی سٹور پہ دیکھیں کہ سبسڈی دینے کے بعد بھی 260 روپے کا پیکٹ گھی کا بک رہا تھا، اور آئل تو ملا ہی نہیں ہے کبھی۔ آپ کے دور میں آئل تو بالکل کبھی ملا ہی نہیں ہے، لوگوں کو گھی کے لیے بھی لمبی لمبی قطاریں۔ یہ جو ہے آپ کی روایت، آپ کی گورنمنٹ کی روایت بن گئی ہے۔ شمیم عباس صاحب، میں انتہائی افسوس سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر کرونا اس گورنمنٹ میں آ جاتا تو اس ٹائم تک یہ دنیا ساری قبرستان میں ہوتی ہے۔ چودھری ارسلان صاحب، آج بھی اس کورونا کی تحقیقات کرا رہے ہیں، جو فنڈ ملے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جو آپ کی گورنمنٹ کو ملے، اس فنڈ کی تحقیقات کرا دے، آپ کو اربوں روپے کے گھپلے ملیں گے۔ مغل صاحب سر، کون لوگ تھے قبضے کرنے والے؟ کون تھی آپ کی گورنمنٹ؟ چودھری ارسلان صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں، آپ کی گورنمنٹ کیا چھوڑ کر گئی سر؟ آج اتنا بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، غریب پیسا جا رہا ہے، ورکر پہلے مر رہا تھا، اب یہ کیا سر آپ کی گورنمنٹ کیا چھوڑ کر گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے جناب وائس آف اردو میزبان شوکت مغل صاحب، آپ کا دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کے چینل کی وساطت ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ جس طرح ہمارے بھائی جناب شمیم عباس صاحب بتا رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی تھی اس گورنمنٹ میں، یہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، چلے ہم مان لیتے ہیں اس نے ملک کو لوٹا، اس سے ملک سنبھالا نہیں گیا، اس سے کوئی کام نہیں ہوا۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 130 روپے پہ یا 150 روپے پہ وہ گورنمنٹ پیٹرول چھوڑ کے جا رہی ہے، اور آپ 210 روپے پہ کھا رہے ہیں۔ آج اس پاکستانی عوام کو 210 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ دوسری بات، آپ نے گھی کی بات کی، شاید آپ کو
ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा नहीं। हम इलाके की सियासत करते हैं, हमें इलाकाई लेवल जो यूसी लेवल की सियासत करने वाला शख्स होता है उसको बड़ा बेहतरीन अंदाज़ा होता है कि क्या रेट है, सब्जियों के क्या रेट हैं, घी के क्या रेट हैं, दालों के क्या रेट हैं। भाईजान 260 रुपया 260 रुपये किलो घी और ऑयल यूटिलिटी स्टोर से एनी टाइम बिल्कुल झूठ मिलता है। था। देखें बात सिर्फ ये घी की बात करें नहीं शमीम साहब मेरी बात सुने, लंबी लंबी कतारें होती थी, एक 10 एक रुपए को मिनट मिलता था, 20 को नहीं मिलता। एक मिनट मेरी बात सुने इस इलाके में मैं भी रहता हूं, जहां आप रहते हैं, और आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। सर मेरी बात सुने। चौधरी अरसलान साहब, जरूर आपकी गवर्नमेंट ने भी ऐसे ऐसे मामलात किए हैं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आपका वर्कर रो 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 कर पीस चुका था। आपके एमएनए एमपीए ने ना उनको प्रमोट किया है ना आगे किया है। चौधरी अरसलान साहब, आप भी तो माशाल्लाह एक गवर्नमेंट के अंदर है सर, आपकी गवर्नमेंट में भी तो ऐसे कोताहियाँ हुई हैं सर। देखें जी बात ये है, मुगल साहब माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैंने एमपीएस की तरफ से जो हमारे पार्टी के कारकुनान और वर्कर थे, वाकई उनकी बहुत दिल शिकनी हुई, उनकी नाराज़गियाँ बिल्कुल बजाय। पार्चे मार्चे प्राडो माफिया बड़ा के साथ लगाया हुआ है। और सर ये कौन सी गवर्नमेंट है सर? ये पीटीआई की गवर्नमेंट। इमरान खान साहब ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि टिकट क्यों देते हैं सर? वर्कर आज वर्कर अगर ना होता तो आज इमरान खान इस्लामाबाद में कैसे आता? मैं इमरान खान पे सवाल करता हूँ, क्या वर्कर की हैसियत यही है? मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ मोहतरम। बात ये है कि हमारे जो एमएनए साहब हैं उनका तल्लक था अवामी मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन उन्होंने जितना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आपका NA-60 में टाइम दिया, खुदा की कसम शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई मेंबर कौमी असम्बली होता तो वो इतना टाइम ना देता। बेशक। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक इतना कारकुन होने के नाते मैं आपको दावे से ये कहता हूँ कि जब हमने एमएनए साहब को कॉल की ना तो हमने जनाब एमएनए साहब को दिन को देखा ना रात को देखा। जब कॉल सर लाल वेली के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं अपने एमपीए की बात करें सर, रावलपिंडी शहर में 5 एमपीए हैं सर। मैं अभी आपको एमपीए की बात बताता हूँ। रावलपिंडी के अंदर हमारे 5 एमपीए हैं जी। राशिद हफीज साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, जाजी खान साहब, चौधरी इत्मीनान साहब, हाजी अमजद साहब, उमर तनवीर भट्ट 6 हो जाते हैं। उमर तनवीर भट्ट साहब सबसे ज़्यादा अगर नाइल और नालायक कोई एमपीए था तो फयाजुल हसन चौहान। फैजल हसन चौहान ने बड़े काम किए हैं सर। मैं बताता हूँ, मुगल साहब मेरी बात सुने। इलाके के अंदर आप जाएं, हर यूनियन कौंसिल में आप मेरे साथ आए, फी यूनियन कौंसिल यूसी 21 से लेके यूसी 30 तक और शकरियाल की 5 यूनियन कौंसिलें आप घूमे, आपको हर गली से फयाजुल हसन चौहान नायल की आवाज आएगी। सर आप ही तो स्टेजों पे तकरीरें करते थे, आप तो कह रहे थे मेरा भाई मेरा फलां शमीम अब्बास साहब। ये कैसी सियासत है सर? देखें बात ये है, मेरे कायद इमरान खान ने हमेशा इया का नाबुदु वइया का नस्ताइन से शुरू की है। हमने हमेशा सच की सियासत की है, हमने सियासत को इबादत समझ के की है। हमने ना पालसियों वाली सियासत की ना मर्चियों वाली सियासत की। हमने हमेशा ही जो इख्तलाफ राय है वो लाजमी रखा, क्योंकि मेरे कायद ने बोला था आप गलत बंदे का साथ नहीं दोगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने कायद इमरान खान के साथ आज भी खड़े हैं, आगे भी इंशाल्लाह अपने कायद के साथ खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह अगर मेरा कायद ने PP 17 के वाले से दोबारा ऐसा फैसला किया तो हम इंशाल्लाह इस पे भरपूर एहतजाज भी करेंगे और वर्करों का मुकम्मल साथ भी देंगे। आज यूसी 21 से लेके यूसी 30 तक, यूसी 30 से लेके शकरियाल की 5 यूनियन कौंसिलें हर वर्कर के पास में गया हूँ। वर्कर ने खुदा की कसम, वर्कर इतने नाराज जनाब से कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या हम वर्करों की तजलील चाहते हैं जनाब? क्या शमीम अब्बास साहब आपकी पार्टी में यही अलमिया है? पहली बात सर वर्कर अल्लाह ने कभी मौका नहीं दिया, पाकिस्तान में वो पार्टी कभी भी वफाक में हमारी हुकूमत बनती रही, जहाँ से MNA MPA का इलेक्शन हमने जीता ही नहीं है।
पहली बात। दूसरी नंबर बात यह है कि ये जो इख्तलाफ है ये तो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात है। मुझे तो चौहान साहब यहाँ नज़र आते रहे, काम शाम तो करते ही रहे, काम करते रहे, लेकिन मेन तब्दीली नहीं आई। वो ये की थी कि पीटीआई को लोगों ने वोट दिया था कि हर चीज़ जो है वो चेंज होगी, हर एक अच्छा काम किया जाएगा और जो रवायती जो सियासत पॉलिटिक्स थी उससे हटा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़िलासफ़ी हमेशा रही है कि उसने अपने वर्कर को तरजीह दी है, उसने अपने वर्कर का काम के जब भी मौका मिला है तो बड़े वर्कर ने कुर्बानी दी है, छोटे वर्करों के काम अल्लाह का फजल नहीं होते रहे, जिस वजह से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के पुराने से पुराने वर्कर को देखें तो आज भी झंडा उठाए खड़ा है। दूसरी बात यह कि एक तब्दीली होनी चाहिए थी कि आखिरी साल में हमेशा बल्दियाती इलेक्शन नज़दीक आते हैं, MNA या जो बड़े इलेक्शन नज़दीक आते हैं, तो इस दफ़ा रवायत शायद ये पढ़नी चाहिए थी पीटीआई की गवर्नमेंट में कि आज पूरा शहर टूटा हुआ है, जिस जगह पे आप चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी भी इस रोड पे चले जाएं, सारे रोड आपको टूटे फूटे हुए नज़र आएंगे और काम भी उस बिहार का नहीं हो रहा। हुकूमत पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, ठेकेदार पेमेंटें ले चुके हैं, वो कहते हैं जून ख़त्म हो उससे पहले हम अपना निज़ाम सीधा कर लें, वहाँ बाहर में जाए। शमीम अब्बास साहब, आप लाइव मेरे प्रोग्राम पे भी आते रहे हैं। 1.5 साल जब मैं वर्कर कहता था, उसने वर्कर की क्यों नहीं सुनी गई? आज हर यूसी में वर्कर नाला है, क्यों है सर? इसलिए है कि एक पार्टी के अंदर जो है ना, हमारी पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत होना बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत जो है किसी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत जब नहीं होती तो इस तरह के मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं और पीटीआई जो है वो इससे आगे अब मेरे आने वाला वक्त में मैं आपको पेश वही करूँगा कि ये टूट फूट का शिकार होगी। उसकी वजह कि इब्न वक्त लोगों ने जो है पीटीआई के ऊपर कब्जा किया हुआ था। मैं किसी की ज़ात पे जो है ना वो कीचड़ नहीं उछालना चाहता, लेकिन ज़्यादातर मैं देखा था कि बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कारकुन गए, वो वापस आ गए, कोई नून लीग से गए। अब जब तो देखा कि आपको जो है पीटीआई के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा है तो वो वापस आ गए। तो पार्टी जो बड़ी पार्टी उनको चाहिए कि कम अज़ कम विभिन्न वक्त लोगों को और नए लोगों से लेने से पहले कम अज़ कम उनको ताम जान जरूर करनी चाहिए कि ये इनका फैमिली सिस्टम क्या है। अब दूसरी बदकिस्मती ये है कि आप देखें कि मैंने किसी ऐसे घराने भी देखे जहाँ एक भाई पीटीआई में है, दूसरा पीपल्स पार्टी में है, तीसरा नून लीग में है, और चौथा लब्बैक के नारे लगा रहा है। ये हम लोगों की एक कमबख्ती है, हमारे मुझे लगे बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का जो एक असली चेहरा है, जो सही फ़िलासफ़ी है वो उसके मुताबिक पॉलिटिक्स नहीं की जाती, मफादात की पॉलिटिक्स होती है, जिस वजह से इस मुल्क को भी, इलाके को भी और शहर को भी क्या बल्कि जमहूरियत को भी इन लोगों की वजह से नुकसान पहुँचता है। जमहूरियत को इन लोगों की वजह से नुकसान पहुँचता है। चौधरी अरसलान साहब, ये यूनियन कौंसिल का इलेक्शन नहीं है, ये पीपी का इलेक्शन है। क्या आया कि पीपी के लिए एमपीए जो है उसके अंदर क्वालिटी का मतलब ये है कि वर्कर की आवाज़ माल बनाने के लिए नहीं, प्रोटोकॉल के लिए नहीं, पॉलिसियों के लिए नहीं, जेन्युइन हकीकी वर्कर की आवाज़। आप क्या समझते हैं कौन वो शख्स है जो आवाज़ उठा सकता है? सबसे पहले मुगल साहब, बात शायद मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल करीब है। मुगल साहब, बात ये जनाब, आप पीपल पार्टी वालों से हमारी जमात की राय ले रहे हैं। ये पिंडी शहर के अंदर 20 कुर्सियाँ लगाते हैं, जिसमें से इनकी 16 कुर्सियाँ खाली होती हैं, 4 कुर्सियों पे सिर्फ बंदे बैठे होते हैं, जनरल लोग होते हैं, 4 झंडे उठा के बैठे होते हैं जो 4 भी। दूसरी बात ये है मुगल साहब कि वर्करों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हर यूनियन कौंसिल में से जेन्युइन लोग मौजूद हैं और वो हल्के को सियासत को भी समझते हैं और वो वर्करों को साथ चलाना भी समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे चेहरे हैं, हम इंशाल्लाह वक्त आने पर वो चेहरे सामने लाएंगे और उनके साथ चल के आपको बताएंगे और इंशाल्लाह बनीगाला की दीवारों तक इंशाल्लाह बनीगालों की दीवारों तक हम जाएंगे और इंशाल्लाह वो करेंगे। सर, आपने कोई बंदा नॉमिनेट किया है बनीगाला की दीवारों तक पहुंचने के लिए, आपने कौन सा चेहरा सामने लेके हैं जो खान को आपने बताना है कि खान साहब ये वर्कर की आवाज़ है? देखे मेरी बात सुने, हमने पार्टी को मजबूत करना है, किसी धड़े को मजबूत नहीं करना। पहली बात सर, वो शख्स कौन है? मैं नाम आपसे पूछ रहा हूं। मेरी बात सुने ना, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि हम अपनी पार्टी को किसी धड़े में तकसीम नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम है कि एंटी चौहान वर्करों की तजलील, पटवार खाने से माल खाना, थानों से माल खाना, हर जगह से माल खाना, फिर ट्यूबवेल 5 लाख रुपया। आप मुझे ये बताएं कि यार कम से कम खुदा खूफी करें, खुदा की कसम। अभी भी लोग कहते हैं आप हल्के में चले जाएं, वो कहते हैं जनाब पटवारी साहब के पास चले जाएं, तो वो तो कहते थे 5 लाख रुपये। हमें सिर्फ और सिर्फ
अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी नहीं होनी देनी, चाहे कोई और MP है हमारी तरफ से, खान साहब किसी को भी टिकट दे दें। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही नज़रिया, यही सोच है कि मेरे कायद इमरान खान को और मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को किसी किस्म की तहरीक इंसाफ की साख को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। चौधरी अरसलान साहब का ये मैसेज है। शमीम अब्बास साहब कहते हैं कि हकीकी पार्टी वर्कर की अगर इज्जत है तो वो सिर्फ पीपल पार्टी है। इमरान खान साहब, मैं बार बार आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, इमरान खान साहब खुदा के लिए आप 2 मिनट अगर मुझे दे दें मुलाकात के लिए, 2 मिनट, रावलपिंडी शहर की आवाज़, एक एक बात आपको मैं बता सकता हूँ। असल हकीकी वर्कर कहाँ पे है, और जो लोग आपके लोगों को इस्तेमाल करके आज जहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। खान साहब, अगर ये वर्कर है तो आप भी हैं, अगर वर्कर नहीं है खान साहब, वर्कर के बगैर आप भी निकल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से ज़रूर रब्ता करेंगे। शौकत मुगल को कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।